let us see how to convert a general Boolean expression into a standard SOP form. Generally, what we see when we started a very simple Boolean expression was not in a standard form. General expression, sometimes it is sum of product, sometimes it is in bracket, sometimes it's in different form. It was there, it was not in a standard form. So, if we have given some general Boolean expression and being asked how to convert it into standard format, so this is what we are going to learn in this slide. This is important. We will be doing a lot of practice questions on that. Conversion of a general expression in SOP form. SOP means sum of products. That is, like if we have this AB plus B within bracket CD plus EF. This is an Boolean expression. So it is, you can say it is not sum of product form, it is general expression. So if you want to convert into SOP, then what will happen? Let us see what they have done. This is P, AB, and then distribution, the law of distribution is applied here. It becomes AB plus BCD plus BEF. Now this format is standard SOP form. So this is very simple. It looks like the bracket खुल दिया बस उसको बोल दे रहे standard करने का तरीका. That is true. This is the way, but we will see how we can further see. Like if you see these examples, then you understand the present form. So the standard SOP form, all the variables in the domain appear in each product term. So you see this was there, and then it says all the variables in domain appear in each product term. So जितने भी term है, उसमें बोल रहे कि सारे वो जो variables है, means input, ABCD, whatever it is, they appear in each product term. So these are the product terms. So like this, you see this is an example. So it's A, B bar, C, D plus A bar, B bar, C, D bar plus A, B, C bar, D bar. It's in a standard form. So this is a standard form, SOP, जो हम लोग SOP बोल रहे हैं. SOP मतलब ये इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग टर्म्स में है और जो टर्म्स है वो मल्टीप्लिकेशन के हैं और फिर उन टर्म्स को ऐड किया गया है. So there is an AND operation, and then within terms there is an OR operation. So if a term is missing from any term and it is negative, its negative must be added to the term. So let us see क्या कह रहे हैं ये लोग. जैसे ये एक है A bar B C plus A bar B bar plus A B C bar D. They are asking to convert it in a SOP, standard sum of product form. So what they do, ये कह रहे हैं कि हर टर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे. So let us see what they are doing. So this is the first term A B bar C. इसको उन लोगों ने क्या किया? Just wrote that A B bar C within bracket D plus D bar. So D plus D bar is always 1. So you can always multiply any number, any term with 1. It doesn't matter. So they multiplied it and then you use distribution. So it becomes AB bar CD plus AB bar C D bar. So this first term, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या था? 4 वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में A B C D, लेकिन पहले टर्म में D नहीं आ रहा. So to convert it into standard form, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि उसमें जितने भी टर्म है सारे टर्म में सारे वेरिएबल्स भी. So that is standard SOP. This is SOP. Then if you say standard SOP means in each term we have all the variables. So ABC bar को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. A B bar C, this was the term, this was the first term.
and we can write it like this. So we multiply it t plus t bar to the whole term, and since this value is 1, it doesn't changes the overall meaning, and so this term it becomes equal to this term. This is the Boolean algebra. When you start understanding this, everything is okay. So this was there. Then again you see this second term. Second term is a bar b bar. यहाँ पे c भी नहीं है, d भी नहीं है, तो हमको c भी लाना है, d भी लाना होगा, तो क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, a bar b bar था, उसको c plus c bar से मल्टीप्लाई कर दिया. So now it becomes with two terms, a b bar c plus a bar b bar c bar. So c comes in, d is just not there. Then this is a bar b bar, इसको ऐसे लिख दिया, and if you see the third line, then they added this t plus d bar here again to add a fourth variable. So this becomes equal to 4 terms. You see this third line और उसका जो final product है. So the second term, which was just a bar b bar, it is converted into 4 terms. एक टर्म था वो 4 टर्म में कन्वर्ट हुआ. और क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म चाह रहे हैं, written SOP format. SOP means sum of products. So here you write in a format that all the terms are sum of products. And then if you say standard SOP means in each term we need to have all variables. So for that you can always multiply using this means you can always multiply a term with 0. तो अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसको एक ब्रैकेट से लेके c plus c bar ऐसा ऐड कर दिया, t plus t bar ऐड कर दिया. So like if you see these 4 lines, so here they are converting it to standard form. तो पहला टर्म था उसमें d plus t bar ऐड किया क्योंकि d नहीं था उसमें, तो पहले टर्म के इक्विवेलेंट 2 टर्म बने, और जो दूसरा टर्म था उसमें 2 ही वेरिएबल थे, 2 नहीं थे, तो बारी से उसमें दोनों वेरिएबल्स ऐड किए. एक बार c plus c bar से मल्टीप्लाई किया, एक बार d plus d bar से मल्टीप्लाई किया, and then it converted into 4 terms. तो जो पहला सेकंड टर्म था it is equivalent to these 4 terms. तो ये कहा गया. और जो लास्ट if you see the third term for the example, it already has all the 4 variables, so you don't have to do anything. So now you just look at this final line. The final line is that there are 3 terms. This is standard sum of product form. This is sum of product form, but to convert it into a standard sum of product form, we have to write it like. तो हमने सारे terms में सारे variable ले लिए. Now if you see this final product, so all the terms have all the values. So this is called standard sum of product form. So हमने कैसे किया? पहले हम लोगों ने गेट लिखा, गेट के बाद से कोई बुलियन एक्सप्रेशन बताया, फिर बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोगों ने बोला कि ये इतने बड़े बड़े हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं. Then we said there is some form to write it. फिर हम लोगों ने उसमें एक फॉर्म बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या है? उसमें जो टर्म्स है तो उनका उसमें पहले डिफरेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है, फिर उन टर्म्स को जोड़ दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट. फिर हमने कहा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट कुछ होता है. स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट वो फंक्शन है जिसमें हर टर्म में सारे वेरिएबल्स. तो अब जो हम लोगों को एक जनरल टर्म दिया गया, जैसे पहले इसमें इस सीरीज में देखिए, अगर if we look at this series, there are 3 terms. पहले जैसे यहाँ पे देखें तो ये था, ये SOP नहीं है. यहाँ पे ऊपर जो सबसे पहले एक टर्म दिए हम लोग, this is not an SOP, this is general expression. So first you just open it, it becomes SOP. So the next thing, this is sum of product.
देन टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या किया कि सारे टर्म में सारे वेरिएबल लाने के लिए वी मल्टीप्लाई इट। तो इस तरह की चीजों के लिए यहाँ पे हमको d प्लस डी सी प्लस सी ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, यू गॉट द आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। और ये दोनों इक्विवेलेंट है, जैसे ये ए बी बार सी को हमने d प्लस डी से मल्टीप्लाई किया, दो टर्म में बन गया। So these both two terms are equivalent to this term since we multiplied it by 1. एक से multiply करने से उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। So this is algebra. This is like mathematics जब करते हैं तो वैसे हम लोग को इसको समझना पड़ेगा। This is more mathematical kind of thing, but if you know the logics and basics of Boolean algebra, तो ये एकदम सिंपल है। A B C D ऐसे हो रहा है, जो भी हो रहा है, it is simple. But you should, to get an idea, you have to be connected. तो ये अब हम लोगों ने एक पहले लिखने का तरीका सीखा जिसको बोले सम ऑफ प्रोडक्ट, फिर हम लोगों ने बोला एक स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट वो है जिसमें जो ईच टर्म्स है वो टर्म में जो वेरिएबल्स है वो प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट होता है, फिर उनको जोड़ देते हैं तो इट बिकम सम ऑफ प्रोडक्ट। एंड स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंस इतना है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट लिखने में हमको ये ध्यान रखना होता है कि जितने भी टर्म है वो सारे टर्म में सारे वेरिएबल्स। सो यू लुक एट दिस एग्जांपल वेयर यू सी दिस इज एन एग्जांपल। इसको स्टैंडर्ड, दिस इज ऑलरेडी एन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। To convert it in SOP, what we did for each term जिसमें कोई टर्म मिसिंग था, जिसमें कोई वेरिएबल मिसिंग था, उसको हम लोगों ने ऐसे ऐड किया। इसमें d मिसिंग था तो we added d plus d बार। इसमें c और d मिसिंग था तो दो बार में हम लोगों ने एक बार c plus c बार ऐड किया, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐड किया नहीं, और d plus d बार दूसरी बार मल्टीप्लाई। So this term converted into two terms, पहला वाला, और दूसरा टर्म कन्वर्टेड इनटू 4 टर्म्स, और जो थर्ड टर्म था वो ऑलरेडी सारे वेरिएबल उसमें थे, उसमें कुछ हमको ऐड करना नहीं पड़ा। सो दिस वाज अ 3 टर्म वेरिएबल, 3 टाइम बूलियन एक्सप्रेशन था जो 3 टर्म्स में लिखा था, और ये बन गया 1 4 और 2, तो 4 और 1 5 और 2 7। तो दिस कन्वर्टेड इनटू 7 टर्म्स। इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर किया, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन यू गेट द कॉन्सेप्ट कि हाउ वी आर डूइंग इट, हाउ इट इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल। ठीक है, ये हम लोग क्यों करते हैं ये तुमको इवेंचुअली समझ में आएगा, बट दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी। So let us move further. I hope you got this idea. If you don't have any, if you have any confusion, if you don't understand, please say it so that I can do it again and again till you don't understand, because फिर आगे का क्लासेस समझ नहीं आएगा। अगर बीच में कहीं पे गैप हो जाता है तो फिर आगे समझना मुश्किल। So that is why I am saying that you should be interactive. If you have some issue, you should be telling. Although I try to explain it again and again, 2-3 times at least, so that you get this idea. So let us see next thing. So earlier हम लोगों ने क्या पढ़ा, सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी ये क्या कह रहा है, दूसरा तरीका भी ये लिखने का, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सम। प्रोडक्ट सम ये क्या है, दिस इज अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन लिखने का एक और तरीका हम लोग देख रहे हैं। सो लेट अस सी ये दूसरा तरीका क्या है। एक हम लोगों ने सीखा सम ऑफ प्रोडक्ट्स, वेयर वी वर लुकिंग दैट एक्सप्रेशन कैसा था, प्रोडक्ट्स जो टर्म थे वो डिफरेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट थे, फिर उन टर्म्स को ऐड कर दिया गया था, इट बिकेम सम ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ देयर इज अनदर थिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट सब सम, POS. That was SOP, this is POS. So there are two different formats to write Boolean expression. ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे फॉर्मेट का बात कर रहे हैं। दूसरे फॉर्मेट का एग्जांपल देखो, दिस इज एक ब्रैकेट में लिखा है a बार प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a प्लस b प्लस c बार। तो ये और वो पहले वाले से अलग क्या है, इसमें देखो क्या हो रहा है,
पहले हम वेरिएबल्स को जोड़ रहे हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे थे, पहले वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर ले रहे थे फिर जोड़ रहे थे। तो जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका दिखना है, तो इसको रटने का जरूरत नहीं। इफ somebody said sum of products, so you know there are products, then you sum it. And when you say sum of products of sum, it means first you sum and then take product of it. So like this, ये दो वेरिएबल्स है a बार प्लस b, तो पहले और गेट, मतलब पहले और गेट लगा और उसके बाद में एंड गेट से सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया। नाउ इफ यू लुक दिस पिक्चर, दिस डायग्राम, ये डायग्राम ये दिखा रहा है। पहले अगर हम लोग पुराने वाले में जाएं, लेट अस गो बैक टू कंपेयर, यू सी दिस, यहाँ पे दिस वाज सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे कैसा था, पहले प्रोडक्ट हो रहा है फिर सम हो रहा है, और यहाँ पे पहले एंड गेट है फिर और गेट है। लेट अस गो टू द अनदर फॉर्म, ये देखिए पहले सम हो रहा है फिर प्रोडक्ट हो रहा है, और जब यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले और गेट है फिर एंड गेट। ठीक है, इट इज क्लियर, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो मेथड है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी, एक है प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज पीयूएस। दोनों तरीके से लिखते हैं, दोनों तरीके अपने आप में सही है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी यूज एनी वन ऑफ देम। सो नाउ अभी हम लोगों ने पहले एसओपी सीखा था, फिर हमने बोला कि स्टैंडर्ड एसओपी कैसे बनाते हैं। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने स्टैंडर्ड एसओपी बनाना सीखा। अभी यहाँ पे हम लोग पीओएस सीखे हैं, तो अब हम लोग स्टैंडर्ड पीओएस कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। स्टैंडर्ड पीओएस क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट। इट सेज, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी में बोले कि हर टर्म में सारे वेरिएबल होना चाहिए, ऐसे ही स्टैंडर्ड पीओएस में बोले मस्ट कंटेन ऑल द टर्म्स इन द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब जब हम एक्सप्रेशन लिखे तो उसमें सारे टर्म होने चाहिए, इसमें भी वही बात कह रहा है। तो एग्जांपल से समझते हैं तो यू विल हैव ए बेटर आइडिया। जैसे ये एग्जांपल है जिसमें तीन टर्म है, देखो तीन टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है। सो दीस टर्म्स आर a plus b plus c multiplied within a bracket, another bracket a plus b plus d, and there is another bracket where a plus b plus c plus d. तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये किस फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। इट इज नॉट ए सम ऑफ प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, ये बहुत सिंपल है, जैसे उसका नाम है वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर थोड़ा ठीक से समझ लेंगे तो इसको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज somebody may get confused कि सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम, वहीं पे लटका रह जाएगा अगर कंफ्यूज है। So you don't get confused, try to understand this sense कि ये sum of products मतलब क्या है। पहले sum हो रहा है फिर प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब पहले प्रोडक्ट हो रहा है और फिर सम हो रहा है। तो इन दोनों को जैसे नाम है वैसे ही समझ लेंगे, तो रटने का कोई जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड पीओएस कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो इसमें बोला कि सारे टर्म में सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है, और इस एग्जाम्पल में अगर तुम लोग देखो तो क्या हो रहा है, ये पहले टर्म में डी नहीं है, दूसरे टर्म में सी नहीं, और तीसरे टर्म में सब कुछ। लेकिन स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमको कुछ बदलना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड पीओएस नहीं। तो क्या लिखा है, इज मिसिंग डी इन फर्स्ट टर्म, इज मिसिंग डी फर्स्ट टर्म, डी इज मिसिंग इन फर्स्ट टर्म एंड सी इज इन सेकेंड टर्म। These need to be added to get expression into standard. स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमको बनाना है, स्टैंडर्ड पीओएस बनाना है, तो इसमें डी आ जाए और इसमें सी आ जाए। जब तक ये नहीं आएगा we will not say standard POS. It is in POS form, but it is not standard. स्टैंडर्ड हम लोग क्यों बनाते हैं ये हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले ये सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो you got what is Boolean expression क्या होते हैं, तुमको समझ में आया। बुलियन एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग लॉजिक सर्किट होते हैं, ये समझ में आया। फिर बुलियन एक्सप्रेशन को
कैसे लिखते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, ये समझ में आया। फिर हम लोगों ने बोला कि इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। सो वी वेंट टू टू फॉर्म्स, वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट, अदर इज प्रोडक्ट ऑफ सम। फिर हम लोगों को बोले कि नहीं, ये जो दो तरीके होते हैं इसमें भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? तो हम ये बोल रहे हैं कि हर टर्म में सारे वेरिएबल को, तो ये स्टैंडर्ड होता है। तो अब दो तरीका, स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड पीओएस। स्टैंडर्ड एसओपी में हम लोगों ने देखा कि जैसे कोई टर्म मिसिंग है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक इफ सी इज मिसिंग, then we multiply the term with bracket c plus c bar. C plus c bar is always 1. So if you multiply it by 1, it doesn't change. But what happens? The missing variable comes in the picture, and we get an equivalent where we can convert it into a standard. Now we are at POS form, and we are trying to learn how to convert an product of some Boolean expression into a standard product of sum. So let us go to the next slide. Yeah. So this is an example where they are trying to add to convert any product of some function into a standard product of sum. So let us look at some examples. So what it says, converting a sum term to product to standard POS. Okay, the same thing. Add each non-standard product term, a term made up of product of missing variables and its component. मतलब कुछ ऐसा करो कि जो टर्म मिसिंग है वो आ जाए। ठीक है, तो क्या किया? तो एक रूल नंबर 12 बोल रहे हैं। रूल नंबर 12, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने 12 रूल्स पढ़े हैं। So you don't need to number by this, because हम लोग प्रेजेंटेशन से कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको 12 नंबर रूल रेफर कर सकते हैं क्योंकि we have slide. Otherwise this 12 number has nothing. Like जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, so there first ला, second ला, third ला is standard form. Boolean algebra में ऐसा नहीं कि ये 12वां हम लोग ला यूज कर रहे हैं। this 12, 11, 9, 10 ये सब कुछ मतलब नहीं। This is like for our reference, but the logic we need to get. So you see there is an the question we wrote, a plus bc is equal to a plus b into a plus c. ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? अभी चाहो तो प्रूव कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, a लिखोगे, ac लिखोगे, ab लिखोगे, then bc लिखोगे, and then if you simplify it you can prove it. So you don't need to mark up this 12 नंबर रूल है, ऐसा कुछ बोलने का जरूरत इस तरह से नहीं है, but you should be able to know कि ये होता है। If you write in Boolean algebra a plus b is equal to a plus b into a plus c, this is okay. If you don't mention this is 12 number rule, make no sense. 12 number rule मतलब ये जो 12 नंबर है इसका कुछ मतलब नहीं है, रूल है ये Boolean algebra का लॉजिक है, ऐसे तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखें कि ये एक टर्म ये है a into a plus c bar into a plus, तो ये जो है इसमें तुमको देखो तो फर्स्ट लेट्स फर्स्ट जस्ट रिड्यूस इट। तो इसको पहले वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, so it simplifies it to become this term simplifies as a। तो ये तो अलग ही चीज कर दी है। ये हम लोग क्या सीख रहे थे कि कोई एक एग्जांपल देके उसको स्टैंडर्ड एसओपी में बदला जाए। सो व्हाट दे हैव डन, दे आर टेलिंग दैट दिस थिंग कैन बी यूज्ड। जैसे ये इस तरह के फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग अगर पीओएस में बदलना चाहें, दिस इज नॉट एन पीओएस फॉर्मेट। इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रूल, it is SOP, some products. So the terms are products and then added. And if you see the right hand side, this is POS. तो SOP POS क्या है? दो फॉर्मेट हैं लिखने के। तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का SOP है एंड राइट हैंड साइड इज POS। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और ये तो जो एग्जांपल दिया है इसको क्या किया इन लोगों ने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको अगर ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई टू A।
So that is not needed for us. We need to look at this sum terms to standard POS. अब इसको देखो, वही वाला एग्जांपल लिया जो ए था, उसको ऐसे लिखा है, ये हमारे पास समझ लो इक्वेशन है, इसको हम ये दिस इज इन POS फॉर्मेट, कैन सी a into a plus c bar and into a plus b, ये जो फॉर्मेट है ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऑफ सम है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स है ए बी सी, और पहले वाले में तो सिर्फ ए है, बी और सी नहीं है, दूसरे में ए और सी है लेकिन बी नहीं है, तीसरे में ए और बी है लेकिन सी नहीं है। तो अब हम लोग इसको ऐसा कुछ करेंगे विदाउट मॉडिफाइंग इट्स लॉजिक, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि सारे टर्म में सारे वेरिएबल्स आ जाए। तो लेट अस सी हाउ टू डू दैट। तो ये देखो, पहला टर्म है ए है यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने क्या किया, दिस इज ए प्लस बी बार, बी प्लस बी बार इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज जीरो। इफ बी इज 1 देन बी और बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनी फंक्शन इफ यू राइट ए इन ए बार इट इज ऑलवेज जीरो। If you remember, we can go back to the slides where we see the laws of Boolean algebra. So, like वहां पे हम लोग क्या किए, जैसे C नहीं था तो C plus C बार करके ऐड कर दिया। यहाँ पे B नहीं है तो हम लोग वहां पे C plus C बार ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे उसको B plus B बार को जोड़ देंगे। B plus B बार का वैल्यू जीरो है, किसी फंक्शन में जीरो जोड़ने से वो फंक्शन मॉडिफाई नहीं होता है। So we can do that. So here if you see the second line, this is added b plus b bar. तो जो पहला a था, a में हम लोगों ने b plus b bar ऐड किया तो उसका इक्विवेलेंट a ही है, और अब इसको जो रूल नंबर 12 वहां पे दिखा रहा था वो उसको लगाया है, एंड we wrote it a plus b into a plus b bar. So अब देखो, ये जो पहला टर्म था जो सिर्फ a था, इसमें अभी b आ गया, और ये इज इक्विवेलेंट टू a plus b bar, इसमें अभी ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या किया है कि a plus b मींस दिस टर्म पहला वाला, उसमें हम लोग c plus c बार ऐड कर दिए, तो c plus c बार इज जीरो। इसमें अगर हम जीरो ऐड करें तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर क्या हुआ, ये टर्म बन गया a plus b plus c, a plus b plus c बार। तो जो पहला टर्म यहाँ था दिस टर्म, इसमें सी आ गया, और दूसरा जो टर्म था उसमें भी सी प्लस सी बार ऐड किया, सो ये भी आ गया। तो जो पहला टर्म है दिस इज ओनली ए, इट कन्वर्टेड इनटू 4 इक्विवेलेंट टर्म। ये जो चार टर्म्स है वो बन गया, लेकिन चारों टर्म्स में अभी ये फायदा है कि सारे टर्म में सारे वेरिएबल्स है। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज चेंज इनटू 4 टर्म बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल था, दो वेरिएबल मिसिंग थे। अब दूसरा देखो, सेकेंड इज a प्लस सी बार, a प्लस सी बार था, इसमें b मिसिंग था तो हम लोगों ने क्या किया, b प्लस b बार ऐड कर दिया। थर्ड वाले में देखोगे तो c नहीं है, सो c इज एडेड हियर, और इस तरह से ये बन गया। तो पहले टर्म में आए 4 टर्म, दूसरे में हुए 2 टर्म, तीसरे में भी हुए 2 टर्म, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 टर्म बन गए इसके। जब हम लोगों ने ये 3 टर्म का वेरिएबल था, 3 टर्म का लॉजिक था, 3 टर्म का बुलियन एक्सप्रेशन था, जो पीओएस था, प्रोडक्ट ऑफ सम था, इसको हम लोग जब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट किए तो ये 8 टर्म में बन गया, इतना बड़ा बन गया, बिकेम लाइक दिस। लेकिन इसका फायदा ये है, क्या फायदा है कि इसमें जितने भी टर्म है हर टर्म में सारे वैल्यू, तो ये हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आज हम लोगों ने अब मैं इसके आगे जो नया टॉपिक है वो आज नहीं शुरू करूंगा। आज हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। आज हम लोगों ने ये बोला कि बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, फिर बुलियन एक्सप्रेशन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट को दोनों तरीकों को समझा, और उसके बाद में हम लोगों ने बोला एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट
स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। जब हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन है उसके सारे टर्म में सारे वेरिएबल्स। तो ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल लेके सम ऑफ प्रोडक्ट का एक एग्जांपल दिया, उसको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में बदला। तो देयर आर थ्री लेयर्स यू सी, वन इज बुलियन एक्सप्रेशन, देन बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन टू वेज, one is sum of product, another is product of sum, and then you convert it to standard sum of product, standard product of sum. So we have taken, if you see that flow chart then you understand कि कैसे ये हो रहा है। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी हैं और मंडे को हम लोग इस पे एक अच्छा ट्यूटोरियल करेंगे। We will do a lot of practice problem for that, and what I will do, I will share you this PPT